All right, guys, let's begin with bid rigging. So, in the previous session, we did talk about the cartels. I hope you guys really enjoy the concept. The feedbacks that I've got, thank you for the feedbacks. Hoping that this enthusiasm continues. Now, before we begin with the concept, let me just tell you that in the bid rigging, we are going to specifically study number one, the concept. Number one, the concept of procurement and auctions. So we will understand the sort of economics behind the what is called as Swayamvar. What is the economics behind Swayamvar? 5,000 years back, 10,000 years back, uh, Swayamvars used to get organized. So we will study how those Swayamvars are connected to the procurements and the auctions today. Certainly, we will be talking about it. Further, why bid rigging is the most important concept in competition law, I will try and explain it to you with the help of real statistics and some empirical studies which have been conducted, proven studies which have been the studies have been released by international organizations like OECD. So we will be talking about it. Eventually, we will be talking about, of course, what is the exact definition of bid rigging. Then we will see the concept, of course. Further, we will talk about what are the various ways and means. Bid rigging करने के कौन से तरीके हैं. We will talk about that. And the most interesting, of course, the case law. So yes, we are going to discuss a very interesting case law wherein three aluminum phosphide tablet manufacturers were penalized by Competition Commission of India, and the penalty that was levied was the penalty of 317 crores. So a very, very, very interesting case law. Okay, so let's get started. First of all, let us try and understand few theories and few concepts, and then we'll jump probably in the concept and the case law. Okay, ये चीज को जोश से नहीं होश से समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ड्रिकोनियन है कि वी हैव टू बी very responsible in in our future conducts. We will have to really understand how important this concept is. In fact, when I interacted with a lot of government officers in various agencies, I think this was the most discussed topic. This was the most probably ये सबसे crucial topic हो जाता है competition law का. ठीक है, तो होश से काम लीजिएगा. ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बट होश से काम लीजिए इसमें. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द interesting theories, interesting concepts. आ जाओ, let me tell you about few interesting concepts. Let's get started. All right, guys. So let's talk about the most interesting concept. Okay, now 10,000 years back, 5,000 years back, there was a concept of Swayamvar. So what used to happen is, मान लो किसी को अपनी बच्ची की शादी करवानी होती थी तो स्वयंवर रचाया जाता था. So what was the concept? Let's not talk about anything else. Just let's understand the economics of Swayamvar. What was the economics behind it? So suppose हमारी एक बच्ची है महक, अपन को उसकी शादी करानी है. तो अगर हम स्वयंवर कराएंगे तो व्हाट विल हैपन, प्रोबेबली हम लोग 50 गबरू जवान लौंडों को इनवाइट करेंगे कि ठीक है भाई आओ कॉम्पीट करो आपस में. सो होगा क्या, महक प्रोबेबली डिसाइड करेगी कि 10 राउंड्स होंगे. एक इंटेलिजेंस का राउंड, एक मसल्स का राउंड, एक क्विज का राउंड, एक पर्सनैलिटी का राउंड, एक एक्स फैक्टर का राउंड. इमेजिन करो महक के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास की बच्ची है महक, उसके लिए 50 बंदे कॉम्पीट कर रहे हैं एंड अलग 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 स्किल्स पे 50 बंदे कॉम्पीट करेंगे. और उन 50 में से सारे चीज़ों में जो सबसे बेस्ट होगा प्रोबेबली उसकी शादी महक से होगी. सो व्हाट इज द इकोनॉमिक्स बिहाइंड दिस? द इकोनॉमिक्स इज द बेस्ट मैन गेट्स द ब्राइड. So fundamentally, we sort of organized this event or Swayamvar
so that we get the best, है ना? बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही अगर हम मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट्स की बात करें, आज जब सरकार को माल बेचना होता है सॉरी, तो सरकार किसी भी एक पार्टी को बोल के बेच सकती है कि ठीक है, हमको इतना इतना सरिया बेचना है, इतना इतना रेती बेचना है, इतना इतना गैस एलोकेशन बेचना है, इतना इतना स्पेक्ट्रम 3G स्पेक्ट्रम हमको बेचना है। तो उसके लिए ऑक्शन क्यों होती है? तो सरकार को जब माल बेचना होता है तो हम लोग उसकी नीलामी करते हैं, हम उसकी ऑक्शन करते हैं, और जो हमें सबसे ज्यादा दाम देगा हम ऑक्शन में माल उसी को बेचेंगे। और बिल्कुल इसी के जैसा एक कॉन्सेप्ट, सरकार अब सिर्फ माल बेचती थोड़ी है, या सरकार सिर्फ चीजें बेचती थोड़ी है। सरकार को तो साल में बहुत सारी चीजें प्रोक्योर करनी पड़ती है, सरकार को बहुत सारा चीजें, बहुत सारे माल, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बंदूकें, डिफेंस की इक्विपमेंट्स, फाइटर जेट्स, सीमेंट, सरकार को बहुत सारी चीजें खरीदनी भी होती है। तो सरकार जब भी कोई माल खरीदती है तो वो माल कैसे खरीदती है? प्रोक्योरमेंट एक्सरसाइज करती है। हम लोग बोलते हैं ना कि हम टेंडर्स इनवाइट कर रहे हैं। बॉम्बे से पुणे का एक एक्सप्रेस हाईवे बनाना है, जो कॉन्ट्रैक्टर सबसे कम रेट में, सबसे बेहतरीन क्वालिटी में रोड बना के देगा, कॉन्ट्रैक्ट उसी को चला जाएगा। कई हजारों करोड़, कई लाखों करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट सरकार जब देती है तो सरकार किसी एक रैंडम पार्टी को थोड़ी देती है। सरकार क्या बोलती है? वी आर इन्वाइटिंग एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट। आप लोग अपना अपना टेंडर सबमिट कीजिए, और आप सब में से जिसका बेस्ट टेंडर होगा, जिसका सबसे कम प्राइस पे बिड आया होगा, जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, हम शायद उससे माल खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फायदा उसमें है। That is, to secure the most favorable terms and conditions, we indulge in procurements, है ना? चलो, let's try and understand this with the help of few examples and then some real figures. अच्छा, alright guys, let's try and understand two things. हम लोग दो शब्दों को समझने की कोशिश करने वाले हैं fundamentally. One is procurement, the other one is auctions. First of all, we will try and understand the concept per se. Then I would probably like to talk about some realistic figures and how things can be better off. But yes, prima facie, first of all, we will be focusing on these two expressions, these two words. तो 2 मिनट के लिए आप इस पे फोकस करिए। अब पहले तो मैं सिर्फ गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, just to understand the concept better. Let's just try and understand the concept better. So अगर हम सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो सरकार फंडामेंटली जब भी सरकार को कुछ माल खरीदना होता है, जब भी कुछ परचेजेस करनी होती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को माल परचेज करना होता है, सर्विस परचेज करनी होती है, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज अगर गवर्नमेंट परचेज करना चाहती है तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एक्सरसाइज में इंडल्ज करती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में आते हैं हम लोग। और जब भी सरकार को कुछ भी माल सेल करना होता है, चाहे कोई भी गुड्स हो, कोई भी सर्विसेज हो, जब भी सरकार को कुछ भी बेचना होता है, और इसके तो बहुत एग्जाम्पल्स है, अब जैसे स्पेक्ट्रम ही है, जो हवाई तिरंगे हैं, जो भारत सरकार एयरटेल, रिलायंस, जियो, आई मीन टू से वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज को बेचती है, तो क्यों स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होता है? कृष्णा गोदावरी गैस बेसिन के सरकारी गैस ब्लॉक्स है, हमारे खजाने, सरकारी खजाना है, वो बेचना होता है, क्यों हम ऑक्शंस करवाते हैं? और जो ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको क्यों बेचती है सरकार माल? इस सब के बारे में थोड़ी बात करते हैं नाउ। तो आई होप यू अंडरस्टूड द स्वयंवर एनालॉजी। कहीं ना कहीं वो जो स्वयंवर रचाए जाते थे, ये हम वहीं से लर्निंग्स आई है। तो हमारा लिटरेचर वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, जितना खोजोगे उतना आपको चीज़ें मिलती जाएगी। बट हाँ, लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्शंस, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोक्योरमेंट एक्सरसाइजेस। नाउ आज लेट्स टॉक अबाउट ऑक्शंस फर्स्ट, ठीक है, फिर मैं प्रोक्योरमेंट पे लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। ठीक है, हम प्रोक्योरमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं, ऑक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मान लो सरकार को अपनी कोई जमीन बेचनी है, ठीक है,
मान लो गवर्नमेंट इज विलिंग टू सेल सम लैंड, एक बहुत कोई बड़ी प्रॉपर्टी है जो सरकार की प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे पहले खेती वेती हो रही होती थी, अब सरकार ने रियलाइज किया कि यार ये तो बहुत ही सही जमीन हो गई है और इसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है गवर्नमेंट अपनी लैंड को बेचने की बात करे। अब जब गवर्नमेंट लैंड वगैरह को बेचेगी तो अगर मुझे लैंड की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई इस सरकारी ज़मीन का हो रहा है ऑक्शन ऑक्शन, या मैं बोलूँगा कि ये सरकारी ज़मीन की नीलामी की प्रक्रिया होगी, ये तारीख को ये समय पे जिसको आना है आ जाए। तो अब टेक्निकली मान लो ये ज़मीन का बेस प्राइस रखा गया, मान लो ये बेस प्राइस के बदले मैं आपको बता देता हूँ, मान लो ये ज़मीन की जो वैल्यू है, मान लो ये ज़मीन की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 10,000 करोड़, बहुत बड़ी ज़मीन है, 10 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए इसकी वैल्यूएशन है। बहुत सारे बिल्डर्स का इस पे ध्यान होगा क्योंकि ये मुंबई से बहुत ही नज़दीक की कोई ज़मीन है, तो नेचुरली बड़े बड़े बिल्डर्स आएंगे, अलग अलग कॉन्सोर्टियम्स आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो बोली लगाएंगे, है ना। तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े बिल्डर्स का नाम लो, बड़े बड़े कंपनीज का नाम लो जो रियल एस्टेट में, सो DLF आएगी, गोदरेज प्रॉपर्टीज आएगी, हॉपटाउन आएगी, शायद कोटले पाटिल क्योंकि बॉम्बे पुणे साइड में काफ़ी है, यूनिटेक शायद आएगी। मान लो ये सब जितनी भी कंपनीज के मैं नाम ले रहा हूँ ये सब रियल एस्टेट में है कंपनीज, सो शायद यूनिटेक आएगी, या हो सकता है इसके अलावा लेट्स टेक अ लोकल नेम, कोई यहीं का नाम लेते हैं, या मान लो कोई लोधा ग्रुप है, वैसे तो बदनाम है ग्रुप बट ठीक है तो बड़ा ग्रुप। अब मान लो सरकार को अपनी ज़मीन बेचनी है तो सरकार क्या करेगी, नीलामी की प्रक्रिया, सरकार बोलेगी ठीक है इस ज़मीन का भाव तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास का है एंड वी आर विलिंग टू ऑक्शन इट। फिर क्या होगा, जिनको जिनको इसमें इंटरेस्ट होगा, जिनको जिनको ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्ट होगा, वो लोग गवर्नमेंट की इस ऑक्शन में जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो टेक्निकली व्हाट शुड हैपन, आइडियली नीलामी की प्रक्रिया में क्या होना चाहिए भाई, DLF की तरफ से जो बंदा आएगा वो अपनी बोली लगाएगा, है ना, वो अपनी बोली बताएगा कि ठीक है मैं तो इसको 11,000 करोड़ में खरीदने को तैयार हूँ। शायद गोदरेज का जो बंदा होगा वो बोलेगा यार मैं इसको 11,500 करोड़ में खरीदने को तैयार हूँ। हपटाउन वाला बोलेगा भाई मेरे लिए तो ये ज़मीन मतलब इट्स एन अपॉर्चुनिटी, आई एम विलिंग टू शेल आउट 12,000 करोड़। कोटले पाटिल बोलेगा भैया हमारी जनरेशन तो ये ज़मीन के आसपास ऑलरेडी बहुत कब्जा की हुई है, हम लोग तो ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारा काम कर ही रहे हैं, अगर ये भी हमारे पास आ गया तो हमारे प्रोजेक्ट्स और सक्सेसफुल हो जाएंगे। यूनिटेक बोलेगी भाई मेरे लिए भी ये ज़मीन इंपॉर्टेंट है, तो सीधे शायद ये 15,000 करोड़ रुपए की बोली लगा दे। वैसे इतना बड़ा होता नहीं है यूजुअली, इतना बड़ा रेंज नहीं चलता है, बट मे बी जस्ट एन एग्जाम्पल। लोधा ग्रुप बोलेगा कि ठीक है नहीं यार हम तो इवैल्यूएशन करके बैठे, हमारे हिसाब से इसका वैल्यूएशन जो है इट इज़ 11,800 करोड़। तो आइडियली अगर बिडिंग हो रही है, अगर कोई नीलामी की प्रक्रिया हो रही है, तो ये जितने भी लोग इस नीलामी की प्रक्रिया में हिस्सा लेने आए हैं ये सब फंडामेंटली ये ज़मीन खरीदना चाहते हैं, और ज़मीन खरीदने के लिए ये लोग, इनको जितना डेस्परेटली ये ज़मीन चाहिए होगी, जितना ज़्यादा इन लोगों का थॉट प्रोसेस होगा कि इस ज़मीन पे हमारा ये प्रोजेक्ट आ जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उतना ज़्यादा वो लोग बोलियां लगाएंगे, है ना। तो इन एन आइडियल सिचुएशन व्हाट शुड हैपन, इन आइडियल सिचुएशन व्हाट विल हैपन, ये सारे लोग आपस में कॉम्पीट करेंगे और नेचुरली ये कॉन्ट्रैक्ट किसके पास जाएगा या ये ज़मीन किसको बेची जाएगी। ये जो ऑक्शन यहाँ हुआ, ये ऑक्शन में जो सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाली पार्टी है, शायद सरकार माल उसको बेचेगी या ज़मीन उसको बेचेगी। सरकार क्या बोलेगी भैया यूनिटेक का बोली सबसे ज़्यादा है और ये ज़मीन जाती है यूनिटेक लिमिटेड के पास, राइट। तो बेसिकली देखो ऑक्शन का फ़ायदा क्या हुआ, the very inherent nature the inherent nature of this exercise is everybody competed, सभी लोगों ने मिलकर कॉम्पीट किया, और इस कंपटीशन की वजह से, इस द नेचर ऑफ द इस राइवलरी की, इस कंपटीशन की वजह से एक बिडर ने ज़्यादा बोली लगाई और सरकार को मिले
10,000 करोड़। शायद जो प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू 10,000 करोड़ के आसपास थी, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, ये जो कंपटीशन क्रिएट हुई, ये जो डेस्परेटनेस क्रिएट हुई, आपने आईपीएल के ऑक्शन में देखा होगा, कोई एक प्लेयर के पीछे कोई पड़ जाती है 3-4 टीमें, तो फिर 7-7, 8-8, 10-10 करोड़ रुपए देके भी वो प्लेयर को छोड़ते नहीं है। तो द इनहेरेंट नेचर ऑफ ऑक्शन इज द पार्टीज कॉम्पीट अमंग देमसेल्व्स, और नेचुरली जब वो लोग कॉम्पीट करेंगे तो सरकार को ऑक्शन में अपने गुड्स या अपने सर्विसेज के लिए ज्यादा से ज्यादा दाम मिलेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट जाएगा उस पार्टी को जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा, है ना। तो आइडियली ऑक्शन में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन इमेजिन करो, इमेजिन करो, कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे। जस्ट इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग। या मान लो सरकार ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला, आपको यहाँ पे बहुत हरामी दिमाग लगाना पड़ेगा, जो यहाँ सीधे बच्चे हैं खास तौर पर। देखो यार, चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना पड़ेगा, आतंकवादी को पकड़ने के लिए आतंकवादी की तरह सोचना पड़ेगा, और ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए हमको इन्हीं के जैसा सोचना पड़ेगा। मान लो अब भारत सरकार बोलती है कि ठीक है, हम पुणे से मुंबई तक का एक एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, ठीक है। मान लो ये है तकरीबन 150 किलोमीटर का एक रोड है, हाईवे है इनफैक्ट। अब बॉम्बे पुणे को कनेक्ट करने वाला एक एक्सप्रेस हाईवे सरकार बनाना चाहती है। अब सरकार बोल रही है कि ठीक है, सारे हिंदुस्तान के कंस्ट्रक्शन वाले, सारे हिंदुस्तान के रोड बनाने वाले लोगों, तुम्हारे पास हम आए हैं और तुम लोग बताओ तुम में से कौन ये रोड बना के देगा। तो आइडियली व्हाट शुड हैपन, आइडियली क्या होना चाहिए भाई, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर या जीवी के इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर IVRL या IVR something infrastructure. Then you have companies like Deepak Buildcon something, Delta Buildcon, some Buildcon. तो ये मान लो एक दीपक बिल्डकॉन, अभी बहुत कंपनी का नाम है सुना, क्योंकि सरकारी रोड बनाने में इनका काफी नाम आ रहा है। तो दिलीप बिल्डकॉन है या दीपक बिल्डकॉन है, आई एम नॉट सो श्योर, बिकॉज इस शेयर में ना मैंने एक जमाने में ट्रेडिंग करी है। आई थिंक इट्स दिलीप बिल्डकॉन नॉट दीपक। सो एक कंपनी है, उसका नाम है दिलीप बिल्डकॉन। तो मान लो ये 4 रोड बनाने वाली कंपनी है। लेट्स टेक वन मोर नेम, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड बनानी, चल ठीक है यार, ऐसे तो लार्सन एंड टुब्रो रोड बनाती नहीं है, एक काम करते लार्सन एंड टुब्रो को रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, इफ दीज कंपनीज, ये सब रोड बनाने वाली कंपनीज हैं, अब सरकार को मालूम है कि भैया ये 150 किलोमीटर का रोड अगर बनाना है, सरकार बेसिकली एक, ये यहां पर हम प्रोक्योरमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। हम ऊपर के एग्जाम्पल में क्या हुआ है, यहाँ पे हम नीलाम किए, हम कोई चीज बेच रहे थे, अब सरकार यहाँ पे सर्विस खरीदने का कोशिश कर रही है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, जीएमआर बोलेगा ठीक है, ये पूरा काम हम कर देंगे 11,000 करोड़ में। जीवीके बोलेगा भाई हम तो 10,000 करोड़ में करके दिखा देंगे ये काम। आईवीआर इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेगा भैया हम तो 9,000 करोड़ में ये कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार है। दिलीप बिल्डकॉन बोलेगा भाई 8,500 करोड़ रुपए में हम रोड बना के देंगे। लार्सन एंड टुब्रो बोलेगा ठीक है भाई, मेरे हिसाब से तो इसकी अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन है 12,000 करोड़, हम तो भाई 12,000 करोड़ रुपए में बना के देंगे। अब आप गौर करिए, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज में गवर्नमेंट कोई माल बेच नहीं रही है, उल्टा यहां पर हम सर्विसेज लोगों की लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। तो यहां पे सरकार के लिए सबसे ज्यादा फायदा क्या है, सरकार के लिए सबसे बड़ी फायदेमंद डील ये है, सरकार फंडामेंटली सरकार का फायदा सबसे ज्यादा कहां पर होगा, ये डील में, क्योंकि दिलीप बिल्डकॉन सबसे सस्ते में रोड बना के दे रहा है। अच्छा, क्वालिटी में भले सारे सेम है, लेकिन दिलीप बिल्डकॉन जो है, ये जो 150 किलोमीटर का रोड बनाने की बात हो रही है, सरकार को सबसे कम में रोड बना के दे रहा है दिलीप बिल्डकॉन। अब हुआ क्या, सरकार को यहां प्रोक्योरमेंट करना था, सरकार यहां माल खरीदना चाहती थी, और जब सरकार यहां माल खरीदना चाहती थी, सरकार को मालूम था कि एवरेज ऑन एन एवरेज 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का टेंडर होगा। यहां क्या हुआ, जिस पर्टिकुलर काम के 10,000 करोड़ रुपए लगने वाले थे, शायद सरकार का वो काम हो गया 8,500 करोड़ में, मतलब सरकार के 1,500 करोड़ रुपए बचे। ऑल इन ऑल सरकार के
सरकार का 15% कॉस्ट बच गया। क्यों बचा? क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटर्स ने आपस में कॉम्पीट किया, है ना। इनहेरेंटली यहाँ व्हाट हैज हैपेंड इज, यहाँ कंपटीशन का नेचुरल जो इकोनॉमिक्स है वो यहाँ पर निकल के आ गया। लेट मी टेक वन सिंपल एग्जांपल यार। मैं क्या बोलता हूँ, मान लो गवर्नमेंट को सीमेंट परचेज करना है, मान लो गवर्नमेंट सीमेंट प्रोक्योर करना चाहती है, मान लो सरकार जो है सीमेंट खरीदना चाहती है, गवर्नमेंट इज विलिंग टू प्रोक्योर, ठीक है, सरकार परचेज करना चाहती है, बेचना नहीं चाहती। तो क्या होगा, सरकार बोलेगी अलग अलग सीमेंट कंपनीज को कि भैया अलग अलग सीमेंट कंपनीज आप बताइए, आप में से सबसे सस्ते दाम में हमको सीमेंट कौन देगा। फिर इसमें अलग अलग कंपनीज, लेफैज, अब तो आप जानते ही बहुत सारी कंपनी का नाम, अल्ट्राटेक फॉर एग्जाम्पल। तो सरकार बोल रही कि भैया हमको खरीदना है, मतलब पता नहीं कितने लाख होगा, सरकार बोल रही भैया हम लोग तो टनों के भाव में, हम लोग को भैया पूरा सिटी बनाना, स्मार्ट सिटी बनाना है, बताओ कौन सीमेंट सस्ते में देगा। आइडियली व्हाट शुड हैपन, ये बोलेगी भाई हम तो गवर्नमेंट को 250 रुपए पर बैग देने को तैयार है। अंबुजा बोलेगी भाई हम तो 240 रुपए पर बैग में तैयार है। बिनानी बोलेगी भाई मैं 225 में दे दूंगी। लेफेर्ज ग्रुप बोलेगा यार मैं 220 में दूंगा। हो सकता है अल्ट्राटेक बोले हम तो भाई 200 रुपए पर बैग में सीमेंट देने को तैयार है। तो आइडियली दिस इज व्हाट शुड हैपन। अगर if there is a natural competition, if there are no malpractices or unfair practices happening here, ideally the competitor should behave in this particular way, है ना। तो कायदे से अगर कॉम्पिटिटर्स को, कायदा कानून तो बोलता है कि कंपटीशन होगी तो ऐसा होना चाहिए, है ना, जहां सब लोग कम से कम भाव में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देने को तैयार हो जाए, ताकि उनका बिजनेस आगे जाए, ताकि उनका ब्रांड बने, ताकि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले। लेकिन मान लो अगर ये सभी कॉम्पिटिटर्स आपस में मिल जाएं, अगर ये सभी कॉम्पिटिटर्स आपस में, जितने भी ये कॉम्पिटिटर्स यहाँ खड़े हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, मान लो ये सब लोग आपस में हाथ मिला दें, आपस में अगर ये लोग मिल जाएं और ये लोग सोच लें कि अबे देख नॉर्मली सीमेंट का भाव है 250 रुपए पर बैग, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं, जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जितने भी हिंदुस्तान के सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर हम सब मिल जाएं और हम सब 300 रुपए की बोली लगाएं, तो सरकार मजबूर हो जाएगी, सरकार को 300 रुपए में सीमेंट खरीदना ही पड़ेगा। हुआ क्या, जो चीज सरकार को मिल जाती 250 रुपए में, या कंपटीशन की वजह से शायद भाव कम होता, सरकार को वही 250 रुपए की चीज खरीदनी पड़ेगी अब 300 रुपए में। इसका मतलब सीधे सीधे 20% सरकार को एडिशनल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। अब यहां हुआ क्या, फंडामेंटली ये पूरी प्रोक्योरमेंट एक्सरसाइज सरकार का कराने का मकसद ये था कि हमको कम से कम भाव में सीमेंट का प्रोक्योरमेंट हम कर पाएं, कम से कम प्राइस पे सीमेंट सरकार प्रोक्योर कर पाए, ये था इंटेंशन, राइट। लेकिन सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, the inherently why do we go for the procurement exercise, the very purpose of inviting bids in the procurement is to secure the most favorable terms and conditions for us. But if all the parties in the bidding, if all the competitors rather than competing among themselves, if they act in collusion, if they collide, अगर वो ये नीलामी की प्रक्रिया में, बिडिंग की प्रक्रिया में आपस में मिलकर काम करें, अगर वो लोग इस पूरी बिडिंग एक्सरसाइज में, ये पूरी बिडिंग प्रोसेस में टेम्परिंग करें, अगर ये सारे कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के साथ हाथ मिला लें और इस नीलामी की प्रक्रिया से छेड़छाड़ करें, तो इसका भुगतान तो भारत सरकार को ही करना पड़ेगा। मतलब सरकार को जो चीज 250 रुपए में मिलने वाली थी, अब सरकार को वो 300 रुपए में मिलेगी। मान लो सरकार को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 10 लाख करोड़ की लागत थी, तो अब ये 10 लाख करोड़ के बदले भारत सरकार को 12
लाख करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। मतलब भारत सरकार का सीधा सीधा 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर्स के बीच में गठबंधन हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने नीलामी की प्रक्रिया से छेड़छाड़ की। क्यों? उन्होंने नीलामी की प्रक्रिया में rather than competing among themselves उन्होंने कोल्यूशन कर लिया। I'm sorry. I hope you're understanding. I hope you're understanding, guys. If I tell you the real figures, तुम्हारे हाथ मोबाइल पकड़ लो, मोबाइल गिर जाएगा तुम्हारे हाथ से। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। You know the real figures. Let me take you to the real figures. Look at the figures now. Do you know how much government spends in India? Let's talk about the real figures now. मैं हिंदुस्तान सरकार की बात करता हूँ। हिंदुस्तान सरकार वैसे तो पूरे विश्व में कोई भी सरकार जीडीपी का 15% प्रोक्योरमेंट एक्सरसाइज में खर्चा करती है। हिंदुस्तान की सरकार का जीडीपी है तकरीबन 200, फॉर द ग्रेविटी ऑफ कन्वर्सेशन में 200 लाख करोड़ बोल रहा हूँ, वैसे तो 260 लाख करोड़ है। मान लो 200 लाख करोड़ रुपए ये है हमारा सकल घरेलू उत्पाद, ये है हमारा जीडीपी, ये है हमारे जीडीपी का साइज। 200 लाख करोड़ रुपए के आसपास इसका हमारा फिगर है। भारत सरकार का जीडीपी जो है ये है 200 लाख करोड़। भारत सरकार ये 200 लाख करोड़ का 30% हर साल प्रोक्योरमेंट में खर्चा करती है। इसका मतलब भारत सरकार को हर साल कितना, क्या हो रहा है ये, व्हाई द स्पेलिंग इज गोइंग ऑन, भारत सरकार को हर साल जीडीपी का 30%, आई रिपीट, जीडीपी का 30% प्रोक्योरमेंट में खर्चा होता है भारत सरकार का। भारत सरकार हर साल में जितना भी जीडीपी होता है हमारा उसका 30% प्रोक्योरमेंट में खर्चा करती है। मतलब भारत सरकार को अलग अलग चीजें खरीदनी पड़ती है, अलग अलग माल खरीदना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन गवर्नमेंट का रेलवे है, इंडियन रेलवे जो है वो भारत सरकार का डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। सिर्फ रेलवे का ही प्रोक्योरमेंट आपको बता दूंगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वैगन्स मतलब जो रेलवे के चक्के होते हैं वो खरीदना पड़ता है। उसके बाद रेलवे की पटरियों का कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लार्ज रेलवे नेटवर्क हमारा है, उसकी मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ते हैं। पूरे हिंदुस्तान के, भारत में जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनका मेंटेनेंस, पूरे हिंदुस्तान में जितने गवर्नमेंट ऑफिस है सब जगह का कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भारत सरकार टोटल हमारे जीडीपी का 30% प्रोक्योरमेंट में खर्चा करती है। इसका मतलब भारतीय सरकार का टोटल खर्चा हर साल कितना है, तकरीबन 200 लाख करोड़ का 30% विल कम टू अराउंड 60 लाख करोड़। मतलब भारत सरकार 60 लाख करोड़ रुपए स्पेंड करती है अलग अलग गुड्स और अलग अलग सर्विसेज खरीदने में। ये है हमारे भारत सरकार की एक साल की स्पेंडिंग। इसमें सब कुछ आ गया। अब इसमें हम बोफोर्स का मिसाइल भी यहीं से खरीदेंगे, या हम जो अभी हमारे नए आधुनिक जो विमान आ रहे हैं, हमारे जो फाइटर जेट्स आ रहे हैं, जो हमारी आर्टिलरी वेपन आ रही है, जो हम बंदूकें खरीद रहे हैं, जो हम डिफेंस की इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, केवलार खरीद रहे हैं हम लोग, नाइट ग्लेयर इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, जो भी भारत सरकार आर्मी के लिए खरीद रही है, रेलवे के लिए खरीद रही है, पूरे हिंदुस्तान में हर चीज जो जो भारत सरकार को खरीदनी पड़ती है उसका टोटल स्पेंडिंग 60 लाख करोड़ रुपए है। Now, the proven study says ये हिंदुस्तान की सरकार जब ये खर्चा करती है, तो जब हम ये पर्टिकुलर प्रोक्योरमेंट करते हैं, अलग अलग गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं, अगर ये सारी प्रक्रिया में फेयर कंपटीशन हो तो भारत सरकार, टू बी फ्रैंक, 17% से 40% सेविंग्स कर सकती है। वी कैन एक्चुअली सेव 17 to 40% अमाउंट रिकरिंग सेविंग है। हर साल इतना पैसा बच सकता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज करने से। कौन सी चीज? सिर्फ अगर हमारे हिंदुस्तान में हम इंश्योर कर लें कि कंपटीशन फेयर है। ओनली बाय इंश्योरिंग दैट द कंपटीशन इज फेयर
सिर्फ इतना हमने इंश्योर कर लिया ना कि कंपटीशन फेयर है, तो 17 से लेकर 40% हम लोग सेविंग कर सकते हैं। मैं कहता हूं एक काम करते हैं, लोअर साइड ऑफ द बैंड में इसको हम लोग ले लेते हैं। अगर भारत सरकार 20% भी सेव करे, अगर 60 लाख करोड़ भारत सरकार जो हर साल खरीद रही है माल, उसका 20% भी सेव करे, तो दैट कम्स टू अराउंड 12 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब ये कि हिंदुस्तान में अगर सिर्फ नीलामी की प्रक्रिया में हम लोग अगर कंपटीशन की फेयरनेस इंश्योर कर पाए, भारत सरकार हर साल तकरीबन 10 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ रुपए सेव कर सकती है। आप इमेजिन करो इमेजिन करिए आप कि 12 लाख करोड़ रुपए में कितने आईआईटीज, कितने आईआईएम्स, कितने न्यू इंस्टीट्यूशंस, कितना हमारा देश का डिफेंस बजट बढ़ सकता है, भारत सरकार कितना कर्जा अपना चुका सकती है, भारत सरकार एक पूरा का पूरा हर साल एक नया स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। अब इमेजिन करिए अभी निर्मला सीतारमन के पास में 12 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा होते हैं। इट्स लाइक एवरी ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया probably 12% से एसएलआर को घटा देने वाली बात हो जाएगी है। हाँ, सो प्लीज अंडरस्टैंड, just by ensuring that there is fair competition in all the bidding processes in India, the government can actually save 12 lakh crores. I am not joking. आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई random figures है। I will actually show you the real source of things. मैं आपको रियल सोर्स बताता हूँ, क्योंकि मैंने रियल सोर्स लाया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। लुक एट दिस, 15% ऑफ जीडीपी इज स्पेंट ऑन प्रोक्योरमेंट इन ओईसीडी कंट्रीज। ओईसीडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव बॉडी है, जिसमें कई सारे देश मेंबर बन चुके हैं और काफी रेप्यूटेड बॉडी है। उनकी स्टडी के अनुसार हिंदुस्तान का जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट स्पेंडिंग है वो है 30% ऑफ जीडीपी। कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस की वजह से हम टोटल प्रोक्योरमेंट का 17 से 40% हर साल बचा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहें तो मैंने लिंक भी यहाँ पर डाली हुई है। अब आप लिंक तो नहीं कॉपी कर पाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कहाँ से आ रहा है कंटेंट। तो सबसे पहली बात तो ये आप अंडरस्टैंड कीजिए कि अभी तो मैंने प्राइवेट सेक्टर की बात की ही नहीं है। प्रोक्योरमेंट जो है वो सिर्फ सरकार नहीं करती है। एक हॉस्पिटल, मेरा एक क्लाइंट था, उसका तो ये बिजनेस मॉडल था। अब हॉस्पिटल्स को माल खरीदना होता है। अब हॉस्पिटल को जब माल खरीदना होता है तो वो क्या करती है, जब जितने माल की जरूरत पड़ती है उतना माल मंगाती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, सेंस ऑफ अर्जेंसी है हॉस्पिटल को माल मंगाते वक्त, तो अनशन भाव में सेलर लोग बेच देते हैं और हॉस्पिटल एंड्स अप पेइंग 20-30-40% मोर ऑन ऑल द इक्विपमेंट दैट दे परचेस, है ना। तो कहीं ना कहीं आप इमेजिन करिए कि आपके फादर का भी कोई बिजनेस है और अगर आपको माल खरीदना है, आप अगर 15 सेलर्स को एक साथ कांटेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं तो आपको फायदा होगा, क्योंकि वो 15 सेलर्स आपस में कॉम्पीट करेंगे। मैं आपको बोलूंगा कि आप डॉक्टर से सीखिए। अभी डॉक्टर लोग जो है ना बहुत बढ़िया काम करते हैं। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उन लोगों को दवाई खरीदना होता है ना, तो वो लोग सारे के सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को एक ही टाइम पे बुलाते हैं। मान लो मैं एक डॉक्टर हूँ, what I will do is, I'm sorry, if I'm a doctor, what I will do is, मैं ना सैटरडे के दिन 12 बजे जितने भी दवाई बेचने वाली कंपनियां, उनके जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मैं सैटरडे को 12 बजे हर कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एक साथ बुला दूंगा, जानबूझ के। मैं क्या कर रहा हूं, मैं जानबूझ के एक ही टाइम पे हर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बुला रहा हूं। ये सब डॉक्टर्स के पास आपने नोटिस किया होगा कि उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब ये सारे अलग अलग दवाई बेचने वाली कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ आके बैठे होते हैं। होता क्या है इसमें, अब साला डॉक्टर अंदर बैठा हुआ है, अभी 15 कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, या आप सेल्समैन बोल दो, 15 कंपनी के सेल्समैन, 15 कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ आकर बैठे हुए हैं। मतलब फंडामेंटली बिफोर मीटिंग द डॉक्टर, ऑल दीज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आर अवेयर दैट उनके 15 से 20 कंपटीशन तो उनके साथ में बैठे हुए हैं।
मतलब द मोमेंट दे विल एंटर द वो डॉक्टर के केबिन में जाएंगे, उसके चेंबर में जाएंगे, चेंबर में जाते साथ डॉक्टर को क्या बोलेगा, हाँ बोलेगा देख बाहर 15 तेरे जैसे और बैठे हैं, तू बोल कितने में देगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो हमने क्या किया, हमने इनहेरेंट एक कंपटीशन क्रिएट कर दी, एक राइवलरी क्रिएट कर दी। जब आपको मालूम है कि आपके जैसे 20 बाहर बैठे हुए हैं तो आप मेरे साथ नेगोशिएट नहीं कर पाओगे अच्छे से, और नेचुरली मुझे मुझे कम दाम में दवाइयां मिल जाएगी, है ना। दैट इज व्हाट इज द आर्ट। हुआ क्या यहाँ, मैंने भी तो कंपटीशन का ही फायदा उठाया ना, मैंने भी तो ये कंपटीशन क्रिएट की, उसका मैंने फायदा उठाया। इफ आई एम रिक्रूटिंग समबडी, अगर मैं किसी को रिक्रूट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, बाहर 15-20 कैंडिडेट मेरे, मान लो इंटरव्यू देने 2 ही लोग आए हैं, तो मैं क्या करूंगा, वो 2 लोगों के साथ में 15 लोग अपने बिठा दूंगा। क्यों, क्योंकि वो 2 लोगों को पता चलेगा कि भैया यहाँ 15-20 लोग कॉम्पीट करने बैठे हैं, तो जब सैलरी नेगोशिएशन होगी मैं आपको बोलूंगा कि भाई हम तो सिर्फ 15 लाख रुपए दे सकते हैं। मान लो 20 लाख रुपए का कैंडिडेट है, मैं क्या बोलूंगा, बाहर बैठे हुए तुम्हारे जैसे 15 और कैंडिडेट, हम दे सकते हैं मात्र तुम्हें 15 लाख रुपए। तो 20 लाख वाला कैंडिडेट 15 लाख में हायर हुआ। क्यों, क्योंकि उसको भी पता है कि बाहर अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, वो उसकी बेचारे की नेगोशिएशन पोजीशन खराब हो गई। ये है इनहेरेंट नेचर ऑफ कंपटीशन। तो सरकार, पब्लिक एंटरप्राइजेस, प्राइवेट कंपनीज, हिंदुस्तान की सभी एंटिटीज को जब माल खरीदना होता है तो वो लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं। प्रोक्योरमेंट का मतलब हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट करते हैं। हर लोग अपना अपना बिड सबमिट करते हैं, अपना अपना टेंडर सबमिट करते हैं, और उन टेंडर्स में सबसे कम दाम में जो बेस्ट क्वालिटी देगा मैं माल उससे खरीदूंगा, क्योंकि मेरा फायदा उसमें है। ये है द वेरी इंटेंशन ऑफ इनवाइटिंग द बिड्स इन अ प्रोक्योरमेंट एक्सरसाइज इज to secure the most favorable terms and conditions for myself. But the very purpose will get frustrated or will get negated if these parties in the bidding process are colliding among themselves. अगर इन लोग आपस में मिल जाएंगे, if they are acting in collusion, the entire purpose will get frustrated. That is the reason it is not considered good. That is the reason it is anti-competitive and per se prohibited in India. Are you understanding? Are you understanding, guys? That is the reason it is a problem. Okay, chalo. Now, so this is the cost actually. This is India can save actually 10 lakh crores every year. This is the real cost. हिंदुस्तान में हम सिर्फ ये इंश्योर कर लेना कि फेयर कंपटीशन बनी हुई है और लोग एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इतना इंश्योर कर देंगे ना, तब भी काम हो जाएगा, तब भी देश तरक्की करने लग जाएगा। इसीलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का इतना वर्चस्व है, इसीलिए कंपटीशन लॉ इतना तेजी से आगे इवॉल्व होने वाला कानून है। आप किससे मिले हो, आप जाओ हिंदुस्तान के बेस्ट लॉ कॉलेजेस में जाओ, कंपटीशन लॉ का बहुत क्रेज है अभी, एंटी कॉम्पिटिटिव एंटी कॉम्पिटिटिव लॉज का बहुत भयंकर क्रेज चल रहा है अभी हिंदुस्तान में। बड़े बड़े जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो लोग ये इस लॉ के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों, उनको मालूम है फ्यूचर है ना। आ जाओ एक काम करते हैं, बिफोर वी गेट इनटू द डेफिनेशन, लेट्स टॉक अबाउट अ रियल केस। एक काम करते हैं हम लोग पहले तो एक रियल केस की बात करते हैं। तो जैसे हमारा पढ़ने का तरीका था, आपको समझा क्या मैंने क्या बोला भाइयों? अभी तो मैं सिर्फ पहले पहलू पे ही था, मैं आपको सिर्फ ये समझा पाया हूं अभी कि अब ये पूरे प्रक्रिया का हिंदुस्तान की सरकार को, अगर सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार, जब भारत सरकार माल खरीदती है, अगर वो इंश्योर कर ले कि हिंदुस्तान में प्रोक्योरमेंट्स में और ऑक्शन में गंदी प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है, अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है, फेयर कॉम्पिटिटिव तरीके से बिडिंग में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ इतना हो जाए ना, भारत सरकार 10 लाख करोड़ रुपए हर साल बना सकती है। आपको भी अच्छे से मालूम है, आप पिक्चर ही नहीं देखते, आपने गंगा जल पिक्चर देखी, उसमें क्या होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जाता है साधु कंस्ट्रक्शन को, और फिर वो जो इंजीनियर ऑक्शन करा रहा था उसको मार देता है वहीं का विलेन कि तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट देगा कि नहीं देगा, मैं देखता हूँ कैसे नहीं देगा। गुंडाई चल रही है। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में प्रैक्टिस है, सबको मालूम है कि बिड्स रिग्ड होती है। हाँ, और अलग अलग तरीके हैं, उसका बात करने के लिए हम लोग रखे हैं ना मेथड्स स्पेसिफिकली रखा हूँ मैं, उसके बारे में बात करेंगे ना। मेथड्स किस किस तरीके से लोग एक दूसरे को आउटबिड करते हैं, किस तरीके का अनफेयर प्रैक्टिस देश में चलता है, किस तरीके से देश को लूटा जाता है, करेंगे उसका बात। बट वो मेथड्स वगैरह पे आए उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे केस लॉ की। अब ये जो केस लॉ हुआ ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना फनी है कि आपको बहुत हंसी आएगी। तो हुआ क्या क्लास, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक हिंदुस्तान की स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान की कंपनी, उसका नाम है
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेचुरली ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि दे डू समथिंग विच इज रिलेटेड विद फूड। तो फंडामेंटली ये जो भारत सरकार की एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, ये हिंदुस्तान में अनाज की विक्रेता है। हिंदुस्तान में अनाज को डिस्ट्रीब्यूट करना ये इनका काम है। तो नेचुरली जब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान में खाद्य पदार्थ को, चावल को, गेहूं को, दाल को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, तो इनको फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती होगी, है ना। ये खाने को प्रिजर्व करना, सेफ तरीके से बचा के रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। ओ क्लास। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस, कहीं ना कहीं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, अब आपकी मॉम भी जब चावल वावल अनाज वनाज रखते होंगे तो उसमें आप प्रिजर्वेटिव्स रखते होगे ना कुछ। आपने सुना होगा कि वो टैबलेट्स होती है, चूहा मारने की दवाई वगैरह रखनी पड़ती है ताकि वो अनाज को ना खाएं या सड़, कहीं उसमें कीड़े ना लग जाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टेक्निकली वो होती है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट्स। अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, इतने देश भर में अनाज का विक्रेता है, वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खाने का, उसका पूरा ट्रांसपोर्ट स्टोरेज का काम इनको देखना होता है। सरकारी इंस्टीट्यूशन है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। तो इनको क्या करना पड़ता था, इनको हर साल खरीदना पड़ता था फॉस्फाइड टैबलेट्स। तो ये है कंपनी का नाम। कंपनी का नाम क्या है क्लास, कमान? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पता नहीं है तो पता होना चाहिए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनका फंडामेंटली धंधा क्या है, ये किस बिजनेस में है, इनका बिजनेस क्या है, इनका फंडामेंटली बिजनेस क्या है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई ये लोग हैं, इनका काम है स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये अनाज को स्टोर करना, अनाज को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये है इनका फंडामेंटल काम। ये मैंने क्या किया, और जस्ट अ मिनट गाइस। या तो फंडामेंटली फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो बिजनेस है वो है स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। ये इनका काम है, इनका ये है बिजनेस। अब ये धंधा करने के लिए इन्हें ज़रूरत पड़ती है प्रिजर्वेटिव्स की या रोटेडेंट्स की, क्या क्या बोलेंगे उसको, एंटी बैक्टीरियल टैबलेट्स की, या व्हाटएवर इट इज कॉल्ड। तो फंडामेंटली इन्हें हर साल खरीदनी होती है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट्स। बेसिकली एकदम सरल भाषा में, अनाज सड़े ना उस वजह से कुछ गोलियां इनको खरीदनी पड़ती है ताकि उसमें कीड़े ना लगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, वो सड़े ना, वो खराब ना हो। अब चक्कर ये है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये फॉस्फाइड टैबलेट्स खरीदने के लिए हर साल क्या करती है, इट इनवाइट्स टेंडर्स। तो ये फॉस्फाइड टैबलेट्स खरीदने के लिए इनको करना पड़ता है प्रोक्योरमेंट। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को करना पड़ता है प्रोक्योरमेंट। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं, और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हिंदुस्तान में ये धंधा करने वाली जो कंपनीज हैं, ये जो फॉस्फाइड टैबलेट्स बनाने वाली कंपनीज है, ये है बहुत ही कम। इनफैक्ट इन कंपनीज का नाम मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इन कंपनीज का नाम क्या है? हम लोग सब यूनाइटेड होके शाम को मिलते हैं। शाम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संध्या। हम लोग सब लोग यूनाइटेड होके संध्या को मिलते हैं, शाम को मिलते हैं पढ़ने के लिए।
ताकि हम कंपटीशन लॉ में एक्सेल कर सकें, है ना। कंपनीज का नाम क्या था? एक कंपनी का नाम था यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, द अदर कंपनी वाज संध्या ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, the other was Excel Corporation, and there was one more, but this is soon going to be out, Agrosynth. अभी हिंदुस्तान में फंडामेंटली ये जो फाले की गोली है या प्रिजर्वेटिव है या इसको जो भी आप नाम देना चाहते हैं, जो भी आप इसको बोलना चाहते हैं बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फंडामेंटली भाई इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट्स। हम हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग हिंदी में इसको बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में बैठे होते, यूएस में बैठे होते, हम लोग ऐसी बातें करते नहीं। लेकिन ये हिंदुस्तान है बाबू, हिंदुस्तान में भाषा होती है हिंदी। तो हिंदुस्तान में फंडामेंटली फॉस्फेट एल्यूमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट्स जो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज है वो यही है। तो चिक्कर क्या होता था यार, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब जब ये दवाई खरीदने के लिए निकलती थी, अभी ट्रेंड था साला, ये हमेशा एक जैसा दाम कोट कर देते थे। ये हमेशा बोलेंगे 200 200 200 200 180 180 180 180 150 150 150 150। अरे ये क्या है, मिल बांट के खेलेंगे, मिल बांट के खाएंगे, टिंग टिंग टिटिंग। ये ब्रिटानिया का बिस्किट है क्या कि मिल बांट के सब लोग रेट तय कर रहे हैं? साले जितने बार मैं आपको ये देखो, मैं आपको ये दिखाता हूँ एग्जैक्ट इसका बिडिंग कितना होता था वो भी दिखाता हूँ, डोंट डोंट वरी अबाउट इट। तो जब हम लोग ये दवाई खरीदने निकले, ये चारों की चारों कंपनियां, हम लोग, अच्छा ऐसा नहीं है कि हम लोग ओरली बात कर रहे हैं, प्रॉपर हम लोग टेंडर इनवाइट कर रहे हैं कि भैया हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, हमको चाहिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट्स, हम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट्स खरीदना चाहते हैं, आप बताइए आप कितने में देंगे? अरे भाई चार अलग अलग कंपनी, एक छोटी एक बड़ी एक बहुत छोटी एक बहुत बड़ी, कि चारों कंपनी एक जैसा भाव कोट कैसे कर सकती है? तो जब जब नीलामी की प्रक्रिया हो, साला ये हर कंपनी वही बोले हम इतने में देंगे, सब बोले 150 150 150 150 180 180 180 180 200 200 200। तो साला इनकी बोलियां हमेशा सेम थी। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का दिमाग खराब हो गया। हमने कहा ये क्या बदतमीजी है साले, हम तुम तीनों किसी से माल नहीं खरीदेंगे, हमने बोले। फिर उसके बाद एक बार फिर से हमने जब ऑक्शन किया तो साले इन लोगों ने बोला हम माल बेचेंगे ही नहीं, अभी ये अपनी औकात अपना उजारी दिखाने लग गए। लेकिन मेरे भाई 2009 कंपटीशन एक्ट हिंदुस्तान में लागू हो चुका था। अब जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये टेंडर खोला, बिड्स इनवाइट की कि भैया हम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट खरीदना चाहते हैं, आप में से कौन कौन बेचना चाहता है? ओ भाई, अब इनका हुसारी थोड़ा बढ़ने लग गया था। एक ने बिड किया 200, एक ने बिड किया 234, एक ने बिड किया 235, एक ने 236। मतलब जानबूझ के कोशिश हो रही थी, इन अंदर अंदर से इन लोग सांठ गांठ कर लिए थे कि भैया हम एक पार्टी को इस बार जितवा देंगे और वो हम सबको मुनाफा शेयर कर देगी, है ना। तो इस तरह से खेला खेले जा रहे थे। दिस इज द वे इट वॉज हैपनिंग इन इंडिया। हाँ, this was the way the game was happening in India. Look at the figures now. This is actually the part of judgment. ये जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, this is actually part of the judgment. Look at this. Now let's just see what was happening. Let me just mark it for you also. आप देखो 2 मिनट। 2002 जितनी भी कंपनीज यहाँ पर थी, सभी की सभी कंपनियों ने क्या बिड किया? 2002 में सभी की सभी पार्टीज ने 245 रुपए की बिडिंग दी। 2005 सभी की सभी कंपनियों ने क्या बोला? सभी की सभी कंपनियों ने बोला कि हम लोग पहले सबने 245 रुपए कोट किया, बाद में 310 रुपए कोट किया। साला पहली बात तो ये कि एक दो साल में इतना भाव बढ़ कैसे गया। उसके बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इनसे किसी से माल नहीं खरीदा, उल्टा एक तीसरी पार्टी थी CWC, उनसे कम में माल खरीदा गया। 2005 नवंबर में जब फिर से बिड्स इनवाइट की गई, सालों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये तीनों चारों कंपनियों ने बोला हम साले अब तुमको माल बेचेंगे नहीं। फिर 2007 में ना ये पार्टीज को थोड़ी अकल आ गई थी, तो ये तो अलग टाइप का गेम खेलने लग गए। बोले हम सेम प्राइस कोट कर रहे हैं तो सरकार को शक हो रहा है, एक काम करते हैं, यूनाइटेड फॉस्फोरस इस बार तुम कम बोली लगाओ, हम सब ये बोली हारेंगे।
सुबह तुम्हारी शाम हमारी, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम जीतो, बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट हम जीत लेंगे। या एक काम करो, गवर्नमेंट का जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तुम उसमें पैसा बनाओ और हमको हमारे साथ तो तुम पैसा शेयर कर लेना, प्रॉफिट शेयर कर लेना, यहाँ हमें सब कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ कुछ काम हमको दे देना। तो यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कि सब पार्टीज में मिली भगत थी, क्योंकि 234, 235, 236, ये तो मतलब आपके जैसा मैच्योर बच्चा पकड़ ले इनको। यहाँ ये तो कोशिश हो रही है यूनाइटेड फॉस्फोरस को जिताने की। 2008 में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया और असली मजा आई कंपटीशन लॉ आने के बाद। जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 2009 में वापस से एल्यूमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट्स खरीदनी थी, तो 2009 में वापस बोलियां इनवाइट की गई। और जब वापस बोलियां इनवाइट की गई तो यहाँ एग्रोसिंथ का कंपनी सेक्रेटरी जो था या उसका लीगल काउंसिल जो था, उसको पता चल गया था भैया कंपटीशन एक्ट 2002 लागू हो गया है, भलाई इसी में कि अपन इसमें पार्टिसिपेट ना करें। यूनाइटेड फॉस्फोरस, एक्सेल कॉर्प, संध्या ऑर्गेनिक्स, तीनों ने 388 की बोली लगाई कि हम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट देंगे 388 रुपए में। लेकिन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस बार सतर्क थी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया मालूम है? ये तीनों कंपनी के ऑफिशियल्स को इनवाइट किया कि चलो ना एक काम करते हैं, टेबल पे बैठ के थोड़ा भाव भाव करेंगे, ठीक है, थोड़ा नेगोशिएशन करते हैं, थोड़ा मिलते हैं। आप इमेजिन करिए क्या हुआ जब नेगोशिएशन हुई। भाई मैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं एक्सेल कॉर्प से मिला, संध्या ऑर्गेनिक से मिला, यूनाइटेड फॉस्फोरस के आदमियों से मिला। जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे तीनों के साथ नेगोशिएशन हुई। नेगोशिएशन के बाद भी तीनों कंपनीज ने 2-2 रुपए, एग्जैक्ट 2-2 रुपए से ही भाव कम किया। मतलब मिली भगत इतनी स्ट्रांग थी, मीटिंग ऑफ माइंड इतना स्ट्रांग था, अंदर से इतने मिले हुए थे कि नेगोशिएशन के बाद भी इनका भाव 386 तीनों का आया। फिर क्या था, हमारा शक यकीन में बदल गया था। और फिर बिना किसी इंतजार के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी दे दी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को। और यहां से बना मेरे भाइयों एक केस। What happened in this case? The Food Corporation of India, it became an informer. Who filed an information? Informant कौन था class? The informant was Food Corporation of India. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो था ये था इन्फॉर्मर, और ये इंफॉर्मेशन किसके साथ फाइल की गई? ऑनरेबल कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। हु इज द which is the nodal body in India which regulates competition? Come on guys, please do not disappoint me now. Honorable CCI के पास ये इंफॉर्मेशन फाइल की गई। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फाइल्ड एन इंफॉर्मेशन, कंप्लेन की इंफॉर्मेशन। अभी भी अगर तुमको कंप्लेन और इंफॉर्मेशन का मतलब नहीं समझा है, आप धन्य हैं भाई। अगर आप अभी भी आप नहीं जान पाए हैं, धन्य हैं आप। हाँ पुरुष ही नहीं महापुरुष है, मैं कौन होता हूँ आपको फिर जानकारी देने के बाद। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इट फाइल्ड एन इंफॉर्मेशन, सो इट फाइल्ड एन इंफॉर्मेशन just a moment with honorable competition commission of India. Against whom? Against the opposite parties, United Phosphorus India Limited or United Phosphorus Limited. So against these three companies, United Phosphorus Limited, then Sandhya Organics and then Excel Corp. ये तीन कंपनियां जो थी ये थी काउंटर पार्टीज। इनके खिलाफ इंफॉर्मेशन फाइल की गई। क्या बोलते हैं इनको? जिनके खिलाफ इंफॉर्मेशन आई, जिनके खिलाफ ये केस दर्ज कराया गया, क्या बोलते हैं इनको? ऑपोजिट पार्टीज। क्या बोलते हैं क्लास? कम ऑन, ऑपोजिट पार्टीज। अच्छा, इंफॉर्मेशन फाइल की गई। क्या आरोप लगाए गए?
आरोप और प्रत्यारोप के बिना कैसी इंफॉर्मेशन, सॉरी. So what were the allegations? Allegation number one, they indulged in, the parties indulged, observe the language guys, in collusive bidding. ये पार्टीज जानबूझ के नीलामी की प्रक्रिया से छेड़छाड़ करती हैं. they indulge in collusive bidding, they indulged इन बिड रिगिंग, नीलामी की प्रक्रिया से छेड़छाड़ करने की कोशिश है. और सर सेक्शन बता दो जरा. सेक्शन 3(3) के आरोप लगे, एलिगेशन लगे कि इन्होंने सेक्शन 3(3) का उल्लंघन किया है. सेक्शन 3(3) क्या बोलता है? अगर कॉम्पिटिटर्स, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स आपस में हाथ मिला लें, क्या बोलेंगे? बिड रिगिंग. सेक्शन 3(3) हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स के बारे में बात करता है और सेक्शन 3(3) के ही, सेक्शन 3(3) के तहत ही एक केस बनाया गया. और जब इन्वेस्टिगेशन हुई मेरे भाइयों, when CCI investigated, it actually found out, CCI की इन्वेस्टिगेशन में CCI found them guilty and it levied the penalty of 317 crores. 317 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई. So CCI investigated, found them guilty and levied the penalty of rupees 317 crores. पता है कैसे पकड़ा? कोई बोलता ना केस लॉ कैसे पढ़ना. अब इतने फनी केसेस हैं, कोई भी पढ़ ले. पता है क्या हुआ था एग्जैक्टली? पता है पकड़ में कैसे आए? अब पता है किस सबूत के बेसिस पे पेनल्टी लगाई हमने? देखो हुआ क्या. अब देखिए, अगर मैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हूँ, आप लोगों को मेरे यहाँ पे टेंडर आके भरना है, फिजिकल बिड सबमिट करनी है. फिजिकल बिड का मतलब क्या होता है भैया? पेन और पेपर में आप लिख के लाओगे या फिर प्रिंटेड पेपर लेकर आओगे, अपना टेंडर सबमिट करोगे, है ना. पेपर में बिड सबमिट करने आओगे. तो एक मई तारीख का महीना था, 2012, 24 जून का जजमेंट था बेसिकली, बिकॉज माई मदर्स बर्थडे. आई रिमेंबर वेरी विविडली द डेट ऑल्सो. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब ये तीनों कंपनीज अपना बिड सबमिट करने आई, तो देखो यार, आप किसी भी बड़े ऑफिस में जाते हो तो गेट पे आपको विजिटर्स रजिस्टर में वॉचमैन क्या बोलता है? भाई साइन करो, है ना. तो बिड सबमिट करने का आखिरी तारीख था. अभी तक किसी की भी बिड सबमिट हुई नहीं थी. लास्ट डेट पे जो वॉचमैन था, उसके विजिटर्स रजिस्टर में टोटल मिला के सिर्फ एक एंट्री हुई थी. आप अगर बिड सबमिट करने आओगे तो आपको वॉचमैन के पास अपना नाम एंटर करना पड़ेगा, नाम आपको लिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपकी ऑफिशियल सिग्नेचर आपको मारनी पड़ेगी. अभी क्लर्क आदमी होगा, उसको जो बोले उसने बेचारे ने किया. तो एक भाई अकेला आया, 3 अलग अलग चिट्ठियां लेके आया. एक आदमी का नाम विजिटर की रजिस्टर में था, एक आदमी ने विजिटर की रजिस्टर में साइन मारा, और 3 अलग अलग टेंडर्स, 3 अलग अलग बिड्स सबमिट कर दी. जब सीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, पता चला एक्चुअल में ये 3 कंपनी की बिड सबमिट करने एक ही आदमी आया था. इसका मतलब गारंटी है कि ये तीनों कंपनियां मिली हुई थी. And eventually the penalty followed. Eventually the penalty was levied. Can you imagine? So this is what exactly happened in this case. And eventually the penalty. Later on the matter went to compat. In fact, when the matter went to compat, Nagpur's own, Justice Shirpurkar, who happened to be Honorable Supreme Court Judge, Chief Justice of India, he was heading the bench in Competition Appellate Tribunal. Later on something happened in this case. I will tell you
अबाउट दैट लेटर बिकॉज दैट हैज़ बिकम अ लैंडमार्क जजमेंट इन इंडिया, बट वो दूसरे मैटर के लिए है। तो बाद में ये तो कंपनी रोने लग गई कि भाई इतना पेनल्टी हम लोग भरने बोलोगे हम रोड पे आ जाएंगे, कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी, कंपनी बंद कर देंगे, रोजगार कैसे मिलेगा, ये सब मजदूरों को नौकरी चला जाएगा। नैतिकता के आधार पे पेनल्टी कम की गई मेरे भाइयों, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। So this actually happened in India, and this is a real case. I'm not joking. This is real facts of the case. So I hope you find this very 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 interesting. आपको मजा आई होगी पढ़ने में। तो देखो यार, मुद्दे की बात करते हैं। अब हमने पढ़ लिया है हमारा दूसरा किस्सा। तो अब हमने एक केस पढ़ लिया है और एक हिंदुस्तान में जो इंपॉर्टेंट चीज मेरे को आपको बतानी थी हमने वो भी पढ़ लिया है। एक काम करते हैं, आ जाओ थोड़ी देर अब हम डेफिनेशन में और कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट अब आप जब पढ़ेंगे ना, अब आपको लगे अरे ये तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि अब आप हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कंपनियां क्या करती हैं, किस तरीके से करती हैं, अब आप ये समझ चुके हैं। तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ बिड रिगिंग। अब मजा है पढ़ने का। लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ बिड रिगिंग। आ जाइए। तो बिड रिगिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं, और डेफिनेशन पढ़ी ही ऐसी जानी चाहिए कि साला अब भी याद हो जाए। ठीक है, तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड the definition of bid rigging. Just give me a moment, please. I will just close this file because it affects the quality. Yeah. So let's just check out the definition now. Yeah. तो एक्चुअल में बिड रिगिंग की डेफिनेशन किसी सेक्शन 2 में अंदर नहीं दी हुई है। बिड रिगिंग की डेफिनेशन सेक्शन 3.3 के एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। इफ यू विल रीड द बेयर एक्ट यू विल अंडरस्टैंड। एनीवेज, let's read it. Now, the term bid rigging is defined as any agreement between enterprises or persons which has effect of eliminating or reducing competition for bids. Any agreement between enterprises or persons which has effect of eliminating or reducing competition for bids or adversely affecting or manipulating the process of bidding. This is the definition. Let's first of all write down the definition. So what is the definition? Any agreement between enterprises or persons. Any agreement between enterprises or persons which has effect of eliminating or reducing the competition, competition for bids. So this is one statement, okay? So any agreement between enterprises or persons which has effect of either completely eliminating और रिड्यूसिंग द कंपटीशन फॉर बिड्स। हम एक ऐसी प्रक्रिया, अगर पार्टीज ऐसी कोई प्रक्रिया में इंडल्ज हो रहे हैं जहां पर वो लोग जानबूझ के ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी एक्टिविटी में वो लोग इंडल्ज कर रहे हैं, ऐसा अग्रीमेंट वो कर रहे हैं जिसकी वजह से नीलामी की प्रक्रिया में बोलियां या तो एलिमिनेट हो जाएंगी या तो रिड्यूस हो जाएंगी, or which has effect of either eliminating or reducing the competition for bids or adversely affecting or manipulating the process of bidding. हुआ क्या?
हुआ क्या, आपने जानबूझ के, आपने क्या किया, आपने जानबूझ के ये प्रोसेस, इसको आपने बिडिंग की प्रोसेस में आपने टेम्परिंग कर दी, आपने नीलामी की प्रक्रिया से छेड़छाड़ कर दी, आपने नीलामी की प्रक्रिया में एडवर्स इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से नेचुरली कंपटीशन कम हो गया और जिसकी वजह से the very intention behind inviting the bids gets defeated. This is the definition. Any agreement, come on guys, come on, let's auto tune. Any agreement between enterprises or persons which has effect of one, eliminating or reducing the competition of bids, or adversely affecting or manipulating the process of bidding. मैं आपके लिए इस प्रक्रिया को, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को और इजी कर सकता हूँ. Let me try and do something for you. इसको आसान करने का एक और तरीका है जो आपको ये डेफिनेशन याद करने पर मजबूर कर देगा. और मैंने तो आपको पहले ही बोला है कि भाई अपने को क्या करना है, अपने को बनानी है ट्यून. जब तक हम लोग पढ़ने की ट्यून नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग को याद नहीं होगी चीज़ें. तो हमको इसको याद करने के लिए एक लय बनानी पड़ेगी, इसको ट्यून करना पड़ेगा. और जैसे ही हमने थोड़ा ट्यून कर लिया काम हो जाएगा, है ना. ये देखिए, हो गया अपना आधा काम. मैं तो बोल रहा हूँ आपको प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है बाबू. आधे से ज़्यादा खेल तो इसी से हो जाता है. सॉरी. So any agreement between persons or enterprises which has effect of one, either eliminating or reducing competition for bids. नीलामी की प्रक्रिया में बोलियां कम हो जाएगी या एलिमिनेट हो जाएगी, या तो और एडवर्सली अफेक्टिंग और मैनिपुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ बिडिंग. ऐसी कोई भी प्रक्रिया, any agreement between persons or enterprises which has effect of eliminating or reducing the competition for bids or adversely affecting the process or manipulating the process is considered as bid rigging. And naturally section 3(3) के तहत ये तो allowed नहीं है ना. So this is the definition guys. कार्टेल की definition याद आ रही है. Includes, the definition of cartel includes section 2(c). definition of cartel includes any agreement between enterprises or persons. Come on guys, याद आ रहा है क्या. Section 2(c) cartels includes association of producers, distributors, service provider traders who by agreement among themselves limit, control or attempt to control the production, distribution, services, price or trade in goods or services. बिल्कुल वैसे ही agreement between persons or enterprise which has effect of eliminating or reducing the competition of bids or eliminating or reducing the competition of bids or adversely affecting or manipulating the process of bidding. नीलामी की प्रक्रिया से छेड़छाड़ अगर कोई कर रहा है जिसे हम bid rigging मानते हैं. The definition is very easy. Now let's try and understand कि सिर्फ डेफिनेशन में तो मार्क्स मिलने नहीं है, तो कॉन्सेप्ट कैसे लिखा जाएगा थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं. तो वैसे तो ये लाइन मैंने आपके साथ इतनी बार रिपीट करके बोल दी है कि आपको बाय डिफॉल्ट ये याद हो जाएगा, आपको ये खुद ही याद हो जाएगा. डोंट वरी. चलो लेट्स रीड इट. ना यहाँ से शुरू होता है किस्सा, ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है. सो बिड रिगिंग टेक्स प्लेस. Bid rigging takes place. Let me just change the color. Yeah. Bid rigging takes place when the bidders collude. Collude का मतलब आपस में मिल जाना. And keep the bid amount at the predetermined level. Such predetermination is by way of intentional manipulation by the members of bidding group. The bidders could be actual or potential ones, but they collude and act in concert. जान दो यार, ये तो अभी तक, ये तो मैंने आपको ऐसे ही रीड करवाया, इसको भी छोड़ दो यार. इधर आओ, ये लिखना है अपने को. सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है, बिड रिगिंग इज एंटी कॉम्पिटिटिव. बाहर में की दुनियादारी, अपने को पहली लाइन क्या लिखनी है. ओ मेरे भाइयों बोलो ना, बोलते खाते कि मरते. सबसे पहले कॉन्सेप्ट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात तो ये कि भाई बिड रिगिंग जो है ये एक एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है.
Come on guys. So bid, हम सोचते बड़ा तो नाम भी बिग लिख दिया. So first of all, bid rigging is anti-competitive. Further, bidding as a practice is intended to enable the procurement of goods or services on the most favorable terms and conditions. So bidding as a practice is intended, come on guys, to enable procurement of goods or services on the most favorable terms and conditions, that is TNCs. इन्विटेशन ऑफ बिड्स, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखेंगे हम आंसर में. इन्विटेशन ऑफ बिड्स इज रिसॉर्टेड टू बोथ बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंटिटीज एंड प्राइवेट बॉडीज, है ना. So invitation I'm so sorry. So the invitation of bids is resorted to both by government and private sector, right? But the very objective will get frustrated if the parties act in collusion. This is what is written here. But the objective of securing most favorable prices and conditions may be negated if the prospective bidders collude or act in concert. ये लैंग्वेज लिखिए, आप देखता हूं मैं नंबर कौन काटता है आपके. But the objective of bidding process will get negated if the parties act in collusion, and naturally such collusive bidding contravenes the very purpose of inviting tenders and is inherently anti-competitive. Such collusive practice is inherently, देखो ये लैंग्वेज में जानबूझ के बार बार यूज करता रहा आपके साथ, anti-competitive and is prohibited. ठीक है, फिर से बोल सकते हो आप, इट कॉजेज इंजूरी टू द इकोनॉमी. क्या बोल सकते हो आप? इट कॉजेज इंजूरी टू द इकोनॉमी या कंज्यूमर एंड टू द इकोनॉमी, क्योंकि काट पीट के तो देश का नुकसान है तो हमारा भी नुकसान है और हम पे भी इम्पैक्ट होगा. तो आप ज़रूर लिख सकते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट को. अब देखो यार, मैं एक्चुअल में आपके साथ जानबूझ के इतनी देर बात की और आई कॉन्स्टेंटली वॉज रिपीटिंग दिस लैंग्वेज सो दैट यू गाइस कैन ऑल्सो अडेप्ट. और बिड रिगिंग ना, अगर सही बंदा पेपर बनाएगा ना, सही बंदा क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर रहा होगा, वो आंख बंद करके बिड रिगिंग पूछ लेगा. पूरे कोर्स में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कोई है ही नहीं. 10 लाख करोड़ रुपए पूरे हिंदुस्तान में कौन सा कॉन्सेप्ट बचा के दे सकते हैं मेरे को, आप बता दो. तो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ, what are the most common ways of
bidding. Let's write it down. Bid rigging, sorry. Some of the most common ways are, किस किस तरीके से लोग बिड रिगिंग करते हैं. कुछ आसान तरीके कौन से हैं? सबसे आसान, अग्रीमेंट टू सबमिट, identical bids, so this is one. Further, agreements as to who shall submit the lowest bid. मैं तो जब लाइव क्लास में होता ना, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारे पापा तो ऐसे ही करते हैं धंधा. मैं बोलता हूँ भैया मेरे सामने बोलो, कहीं और मत बोल देना और बंद कराओ ये प्रैक्टिस, मैंने बोला. तो इसे वॉलंटरीली इन्फ्लेटेड बिड्स बोला जाता है. मतलब हम 4 दोस्त जाएंगे, चारों दोस्त में से हम एक को जिताने का कोशिश करेंगे और फिर उसको बोलेंगे कि भैया प्रॉफिट शेयर कर लो. अच्छा, कोई कोई क्या होता है ना, इलाका बांट के धंधा कर देंगे. दिल्ली सर्कल में मैं काम करूंगा, बॉम्बे में तू काम करेगा, साउथ में तू, वेस्ट में तू. तो अग्रीमेंट्स नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर. इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको एक गजब का. और एकदम मैं इसका ना आपको दिल्ली का एक किस्सा बताता हूँ. 2 भाई हैं, कट्टर दुश्मन. मतलब तलवारें चल गई एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के बच्चों को मारा गया है. ठीक है, धंधे का बंटवारा हो गया, 2 अलग अलग धंधे चलते हैं. लेकिन आज भी जब सरकार का टेंडर निकलता है तो दोनों भाइयों के मैनेजर आपस में बात करते हैं कि भैया देख, इस साल कॉन्ट्रैक्ट मैं लूंगा, अगले साल तू लेगा. साउथ दिल्ली का मेरा, नॉर्थ दिल्ली का तेरा. कट्टर दुश्मनी आपस में, उसके बावजूद बिजनेस में वो लोग सरकार को मिल बांट के ही लूटते हैं. अग्रीमेंट नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर. ये सर्कल मेरा, वो सर्कल तेरा, चल वो एरिया में जा, ये एरिया में आना नहीं. बिल्कुल एंटी कॉम्पिटिटिव है. ये भी एक बहुत कॉमन तरीका है. इन्फ्लेट कर देना प्राइजेस को. मतलब जो चीज़ 100 रुपये में बन सकती है, जानबूझ के पार्टीज आपस में सब लोग एक दूसरे के साथ कॉस्टिंग शेयर कर देते. कॉस्टिंग करने का मेथड, सो यू नो, इन्फ्लेटिंग prices by manipulating costing of products services. ठीक है, 4-5 एग्जाम्पल्स आर मोर देन इनफ. आई हैव गिवन यू सो मैनी. बट होता क्या है, अब मान लो गवर्नमेंट मान लो हमसे खरीदना चाहती है सरिया. अभी साला सबको मालूम है कि 100 रुपये में बन जाते हैं, फिर भी हम क्या मिलेंगे, सब मिलेंगे एक साथ. नहीं यार सुनना, 100 रुपये में बनता है लेकिन 120 रुपये लेते ना यार. गवर्नमेंट का ही तो पैसा है यार, तू भी ले, मैं भी लेता हूँ यार. सबको थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, चारों को 25-25% बनाने को मिलेगा. 120 सबको 20% ज्यादा मिलेगा. जय माता दी, लेट्स रॉक. These are some of the common ways. To tell you frankly, this is what has to be written in the examination. In real life, करप्शन इतना खतरनाक है कि अगर मैं रोड बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं फ्लाईओवर बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो मैं डिपार्टमेंट के आदमी को बोलूँगा कि सुन मेरे भाई, जब तू टेंडर इनवाइट करने के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट करने के लिए पेपर में, अखबार में जब तू एडवर्टीजमेंट देगा, तो उसमें लिख देना कि मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड. मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस डाल दोगे तो छोटे मोटे 2-4 नए नए प्लेयर्स आएंगे, वो ऐसे ही कर जाएंगे. तो सेटिंग बहुत हद तक होती है, अलग अलग तरीके से होती है. ये सब इलीगल है, अलाउड नहीं है और नहीं होना चाहिए ये सब. अगर मैं बड़ी पार्टी और मुझे मालूम है कि सरकार का कॉन्ट्रैक्ट मुझे चाहिए, तो मैं एक्चुअल में जो प्रोक्योरमेंट एक्सरसाइज में जो एडवर्टीजमेंट बनाने वाला होगा, उससे बात करके मैं ऐसे क्लॉजेस डलवा दूंगा,
ऐसी कंडीशन डलवा दूंगा जो इंडस्ट्री में सिर्फ शायद मैं फुलफिल कर पाऊँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो भारत सरकार बोले कि यार हम कंपनी सेक्रेटरी, एस्पायरिंग कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स के लिए भारत सरकार अपने एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे वीडियोस डालेगी, सीएस बच्चों के लिए फ्री होगा। जो अपने सब्जेक्ट के वीडियो सरकार को सबमिट करेगा उसको एक एक सब्जेक्ट का 50 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को मैनिपुलेशन करना है और मेरे को कंपटीशन खत्म करनी है, मैं क्या करूंगा? मैं सरकारी बाबू से मिलूंगा और उसको बोलूंगा, सुन मेरे भाई, उसमें ये बात डाल कि वीडियो की रेंडरिंग, वीडियो की रिकॉर्डिंग, मिनिमम इतने अपर्चर वाले कैमरा, मिनिमम इतने लेंस वाले कैमरा, मिनिमम 4K, मिनिमम 25 FPS, 30 FPS, 60 FPS फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर मैं उसको बोलूंगा ये इतनी लाइटिंग वाला वीडियो होना चाहिए, इतनी क्वालिटी, डॉल्बी साउंड, सराउंड साउंड सब, और बराबर ऑडिट और बराबर साउंड की मिक्सिंग वाली क्वालिटी वाला वीडियो होना चाहिए। अगर मैंने ये सारी बोलियां लगवा दी तो मेरे अलावा कोई बचेगा ही नहीं लॉ में जो 4K में वीडियो दे रहा है, कोई भी नहीं इंडिया में। तो मैं जाके सेटिंग कर दूंगा ऊपर, खेल खत्म सबका। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। 4K इज नॉट द ओनली पैरामीटर। मैं तो सिर्फ एक पर्टिकुलर वे में क्वालिटी को इंक्रीज करने का पहल किया हूँ। दूसरे लोग अलग अलग, मैं तो चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़े, सारे टीचर्स मिलकर अपनी अपनी कोई कोई अच्छी चीज़ को वीडियो में डालेंगे तो हम भी वो देखेंगे कि क्या अच्छा आ रहा है तो हम भी अडेप्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कंपटीशन बना रहे, आई वेलकम कंपटीशन। मैं तो प्रचार करता हूँ, मैं तो कंपटीशन एडवोकेसी में ही काम करता था पहले। मैं तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में यही बोलता था सबको कि भैया कंपटीशन का कॉन्सेप्ट समझिए, तो अच्छी चीज़ है। उल्टा कॉम्पिटिटर ना होना इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि लॉन्ग रन में कॉम्पिटिटर नहीं होगा तो मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं, मेरी क्राफ्ट पे मैं जो पकड़ बना रहा हूँ आज की डेट में, वो कंपटीशन की वजह, इंटेंस कंपटीशन की वजह से मैं हर इमोशन पे काम कर रहा हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट का इतना गहराई गहराई से क्यों बात कर रहा हूँ मैं? क्योंकि अब मैं आगे आगे रहना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कंपटीशन रहे, मजा आती, नहीं तो फिर इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा पढ़ाने में। मैं अकेले ही क्या, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम है तो क्या हम है, दोनों होना चाहिए, मजा आती है। जब सब लोग होना चाहिए, मतलब इंटरेस्टिंग लगता है। गेम में मजा तो आएगा ना जब 10 लोग से अपन अच्छा काम कर पाए। अभी होंगे ही नहीं तो फिर क्या मजा? तुम बोलोगे अरे राहुल सर के अलावा कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं होना, मजा नहीं आती ऐसे। एनीवे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर ऐसा, मान लो अब जैसे इस टाइप का अगर टेंडर निकला सरकार का कि भाई लॉ का वीडियोस चाहिए, मैं क्या करूँगा? सरकारी बाबू से सेटिंग करूंगा, बोलूंगा सुन मेरे भाई, बोल के गवर्नमेंट बोल रही है मिनिमम 4K क्वालिटी वीडियो चाहिए। जब तक लोग बनाएंगे बनाएंगे तब तक मैं सबमिट करके खेलना खत्म, और अपन सीधा यूरोप के छोटे गांव में अपना कुटिया बना के वहां बैठेंगे, है ना। उस लेवल पे भी गेम होता है। ठीक है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्पेशली कोलंबिया, श्रीलंका, पाकिस्तान ऐसे देशों में सिद्ध हो चुका है कि अगर उनके देश में प्रोक्योरमेंट एक्सरसाइजेज में अगर कंपटीशन का फिनोमिनन ज़्यादा अच्छा बन गया तो वो लोग 30-40% ऑफ द जीडीपी स्पेंड बचा सकते हैं। तो आई मीन टू से कि टोटल जो उनकी प्रोक्योरमेंट में स्पेंडिंग है उसका 30% वो लोग सेव कर सकते हैं। प्रूवन स्टडी है OECD की, ज़रूर पढ़िए आप रिसर्च के बारे में। तो आई होप बिट रिगिंग एज अ कॉन्सेप्ट आपने एंजॉय किया होगा। तो इसमें हमने प्रोक्योरमेंट्स को समझने की कोशिश की, किस तरह से वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्वयंवर यहाँ पर आ जाता है। फिर हमने डेफिनेशन की बात की, फिर हमने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की, अलग अलग बिट रिगिंग के मेथड्स हमने समझने की कोशिश की, और ऑफ कोर्स द केस लॉ। सो होप you guys enjoyed. This is the most important concepts, guys. Just imagine 10 lakh crore का saving every year. I hope the government realizes it soon that Competition Commission of India needs to increase its resources. भारत सरकार को यूनियन बजट में Competition Commission of India को और फंड्स देने चाहिए। सिर्फ एक बेंच है दिल्ली में, नागपुर में, बॉम्बे में भी बेंच होनी चाहिए, कम से कम 3-4 बेंच और चाहिए। कंपटीशन एपिलेट ट्राइब्यूनल को वापस से स्थापित करना चाहिए। गवर्नमेंट सोचती थी कि वो सरकार का खर्चा हो रहा है कंपटीशन एपिलेट ट्राइब्यूनल, जबकि कंपटीशन एपिलेट ट्राइब्यूनल समय की डिमांड है ना। कंपटीशन का इन्फोर्समेंट, कंपटीशन लॉ का इन्फोर्समेंट भारत में और मजबूत होना चाहिए। अगर सही मायने में हम लोग निकल जाएंगे ना चेक करने के लिए कि कितने कितने अग्रीमेंट हैं देश में जो एंटी कॉम्पिटिटिव है, पूरे देश में जितने अग्रीमेंट होंगे उसमें से 50% एंटी कॉम्पिटिटिव निकल जाएंगे।
तो उसके लिए भारत सरकार को इन्फोर्समेंट में मजबूती लानी पड़ेगी, पैसा खर्चा करना पड़ेगा लोगों को। अभी देखो पिछले, ऐसे तो मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हर 2 साल में हायरिंग करती है, और फ्रैंकली स्पीकिंग 33 ईयर्स तक की मैक्सिमम एज में डेप्यूटी डायरेक्टर की पोजीशन में आप लोगों का आसानी से रिक्रूटमेंट हो सकता है। आई हैड एक्चुअली अप्लाइड, बट यार वो जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल में मुझे जाना था उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में अपनी प्रोफाइल नहीं बैठती। वो फाइनेंशियल एनालिसिस में CS लोगों को लेते हैं, बट अब फाइनेंशियल एनालिसिस में कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, कॉस्टिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है हमको, तो वो करने के लिए थोड़ी जाऊंगा मैं काम छोड़ के। और वो भी मेरी जो रेवेन्यूज़ है, अब ठीक है वहाँ पे भी सैलरी 15-1 लाख रुपए होती है, 14-15 लाख रुपए की सैलरी होती है, बट ठीक है मैं तो इतने साल से मरा रहा हूँ, तो आई हैव बीन डूइंग बेटर। तो बट फिर भी मैं फ्रैंकली मैं एक चॉइस दिया था। लेकिन यार प्रॉब्लम यही थी कि जो पर्टिकुलर प्रोफाइल अपने को चाहिए वो प्रोफाइल में होना मुश्किल था। बट एनीवेज आप जाइए एडवर्टीजमेंट चेक करिए। गुड थिंग मैथमेटिक्स भी नहीं लगता, सिर्फ कंपटीशन लॉ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको कंपटीशन लॉ में थोड़ा तजुर्बा होना चाहिए। तो आप इमेजिन करिए, भारत सरकार 10 लाख करोड़ हर साल बचा सकती है सिर्फ हिंदुस्तान में फेयर कंपटीशन अगर हो जाए उससे। I hope you understand the gravity of this conversation, and I hope you understand the concept better. Uh, there were instances, I told you, ये कॉन्सेप्ट चिल्ला के जोश में नहीं होश में करने वाला है। ये कॉन्सेप्ट को आप गंभीरता से समझिए। आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, रोड बनाना, पुल बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट देना, ब्रिजेस के कॉन्ट्रैक्ट देना, भारत सरकार कितनी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट बांट रही है, कितनी जगह पे भारत सरकार को लूटा जा रहा होगा, इमेजिन करिए आप। कितने एरियाज हैं। भारत सरकार डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदती है, हर बार वो सुर्खियों में आया था, लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट सही में मायने में बनाने वाली बहुत कम कंपनियां ही हैं। बट आप इमेजिन करिए, फॉरगेट अबाउट डिफेंस केसेस, मैं बोल रहा हूँ हिंदुस्तान में इतनी सारी जो लोहा लोखंड भी सरकार खरीद रही है। रेलवे जो है, रेलवे ने रेलवे प्रोक्योरमेंट एक्ट निकाला, आपको मालूम है? क्योंकि रेलवे को ही 1 साल में इतना माल खरीदना पड़ता है, रेलवे के लिए पूरा अलग से बजट बनता था भैया। तो वहां सब में ये कॉन्सेप्ट अगर सही मायने में लागू हो गया ना, फेयर कंपटीशन इंश्योर हो गई, 10 लाख करोड़ हर साल बचता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनीवे, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस गाइस, थैंक यू, बाय बाय।